Today's topic is about statistics. First of all, what is statistics and why we need a statistics in our data science, or you can say the data analysis. Because data to analyze will do statistics की बहुत ज़रूरत पड़ती है. What is statistics? First of all, आपको पूरा बहुत knowledge हो statistics के बारे में. Statistics क्या होती है? नहीं, आप बोल तो है. अगर आप किसी भी डेटा को चार्ट में अगर डेमोन्स्ट्रेट करते हो तो दैट इज नॉट द स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स का एक स्पेसिफिक जरूरत होती है जब भी आप डेटा एनालिसिस करते हो. रिमेंबर वन थिंग, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स इज द वे टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा. आपको ये पता है कि आप जब डेटा साइंस में हमने स्टार्ट किया था, एट दैट टाइम आई जस्ट टोल्ड यू दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड डेटा. डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में क्या फर्क है? Data is basically a raw material, you can say, and the information is the processed information, right? Information क्या होता है कि आप इस डेटा में से कोई ना कोई लॉजिक्स और यू कैन से इनसाइट्स जब आप गेट करते हो, those are basically information. Now this statistic is basically the way to get information from the data. अगर आपको डेटा में से कोई भी इंफॉर्मेशन निकालनी है तो आप नॉर्मली स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एज अ डेटा एनालिसिस और एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट यू नीड अ गुड कमांड ऑन मैथमेटिक्स, स्पेसिफिकली ऑन लीनियर अलजेब्रा एंड स्टैटिस्टिक्स, राइट? लीनियर अलजेब्रा हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह करेंगे. इस क्लास का आज का टॉपिक था स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स किस तरीके से काम करती है एंड व्हाई वी नीड इट. फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी दैट the statistics is the way to get information from data. Is how we get information. First of all, we have a data, and data has been treated by statistical algorithms, or you can say statistical formulas. In the end, we get some information from it. Statistics is a tool for creating new understandings from the set of numbers. For example, there is a list. इस तरह की लिस्ट है. मैं लिस्ट बना के आपको दिखा देता हूँ. Let me. This is week 16, right? For example, we have a list, or you can say array कर देते हैं इसको. NP dot, sorry, into numpy. Now here we have a list or an array of numbers, that is 2, 4, 6, 7, 8, and 9. Now, how will you get some information from it? First of all, you need to provide this data to a statistical tools. For example, we have so many of algorithms, or you can say the formulas to get some information. For example, if I want to see what are basically the average values of our array, तो इसकी average क्या होगी?
व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज? एवरेज का फॉर्मूला क्या था? मैंने लास्ट टाइम बताया था, sum of all elements divided by the number of elements. ठीक है, how many numbers of elements are available here? 1 2 3 4 5 and 6. Let's see, the average is 6.5, right? चेक करो क्या होगी इसकी एवरेज? 6 only. Now the average is 6. Now this is the information that the most, for example, these are the marks of students that all have collected. For example, ये क्या है? marks है किसके? Students के. ये लोगों ने, मतलब students ने कितने marks उठाए? First student has taken the marks of 2 from 10. ठीक है? अब आपको पता है फर्स्ट वाले ने कितने marks थे? 2 marks थे. सेकंड वाले ने 4, थर्ड ने 6, उसके बाद 7, 8 and 9. तो एवरेज मार्क्स जो लोग उठा रहे हैं वो क्या होगा? 6. Right? For example, I want to see that my class is performing well or not. तो वो मैं कैसे पता चलेगा कि मेरी क्लास सही परफॉर्म कर रही है या नहीं परफॉर्म कर रही है? I will find the average. In the same way, आप average भी कह सकते हो, आप इसको mean भी कह सकते हो. Mean का मतलब ये होता है, mean is also the average of list or array. ठीक है? आपके पास average या mean आ गया, तो mean क्या है हमारा? 6, right? इसी तरीके से आप और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस निकाल सकते हो यूजिंग स्टैटिस्टिक्स. ठीक है? These informations are basically helpful to for the decision making. डिसीजन मेकिंग मैंने आपको बताया था कि इसको कहते हैं हम जब हम किसी भी चीज के ऊपर कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल, आई एम सेइंग दैट फाइंड द पाथ या फाइंड द फील्ड व्हिच पेइंग द मोस्ट. तो आप क्या ढूंढोगे? अगर आप आगे जाके फ्यूचर के अंदर कोई भी जॉब करने जाते हो तो आपको अगर कहा जाए कि वो फील्ड लो जो सबसे ज्यादा पे करेगी आपको, तो आप किस तरीके से देखोगे? आपके पास अलग अलग फील्ड्स होंगी, अलग अलग फील्ड्स के अंदर अलग अलग सैलरीज होगी. आप देख सकते हो एज अ प्रोग्रामर आपको पाकिस्तान हैदराबाद के अंदर आपको तकरीबन अप टू फ्रॉम 40,000 टू 1.5 लाख तक की सैलरीज आपको मिल जाती है हैदराबाद के अंदर. आप कराची चले जाओ, कराची के अंदर आपको स्टार्टिंग आपको 50 से लेकर आपको 2.5 तक की सैलरीज आपको मिल जाती है फॉर अ डेवलपर. ठीक है? इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए भाई ग्राफिक डिजाइनर की बात करते हैं, तो ग्राफिक डिजाइनर की नॉर्मल सैलरी अगर आप हैदराबाद की बात करते हो तो 30,000 से शुरू होती है, फिर वो 1 लाख तक स्टॉप हो जाती है. अगर आप कराची चले आते हो तो ग्राफिक डिजाइनर की सैलरी तकरीबन 40 से 45,000 रुपए से स्टार्ट होती है, फिर उसकी एंड आपको तकरीबन 1.5 लाख पे एंड हो जाती है. इसी तरीके से अगर आप यही सेम चीजें दूसरी फील्ड्स के अंदर भी देखते हो, अब आपसे कहा जाए कि आपने फाइंड आउट करनी है वो फील्ड जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा पे किया जाए, तो आप कैसे ढूंढोगे? आपके पास एक पूरा डेटा कलेक्टेड अवेलेबल है. कंप्लीट डेटा कलेक्शन इज अवेलेबल व्हिच कंटेन्स द फील्ड्स एंड द मिनिमम एंड द मैक्सिमम सैलरीज ऑफ दैट फील्ड. तो अब आपको कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी जगह पे कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए? यू विल फाइंड दैट मैक्सिमम, राइट? आप क्या करोगे भाई? ये देखोगे भाई मैक्सिमम कहां मिल रही है. दैट इज द रॉन्ग आंसर. क्यों? क्योंकि कभी भी मैक्सिमम के पीछे नहीं जाना चाहिए, उसकी एक वजह होती है. फॉर एग्जांपल, आपसे कहा जाए कि हैदराबाद के अंदर मोस्ट जो मैक्सिमम सैलरी ऑफ अ डेवलपर इज 1.5. ठीक है? लेकिन वो कितने हैं? How many of them are there which are paying 1.5 lakhs for as a developer? कितने लोग हैं? आपको मैक्सिमम 2, 3, 4, 5 लोग मिलेंगे. Again, I am asking that how many of the developers are here in Hyderabad which are taking under 1 lakh rupees? तो आपको ये बहुत ज्यादा मिलेगी. That means the probability to get a salary is the average salary, not the maximum. क्योंकि जब आप मैक्सिमम के पीछे जाओगे that means भी आपको नजर तो आ रहा है कि हाँ भाई 0 से लेकर भाई 5 अच्छे खासे लोगों को सैलरी तो मिल रही है, लेकिन वो लोग कितने हैं? जब आप डिसीजन मेकिंग करते हो तो you will find the average and you will go for the average, not for the maximum value. ठीक है? ये सारी चीजें आपको कहां से मिलेंगी? यूजिंग स्टैटिस्टिक्स.
स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जिसमें हमारे पास मीन लोकेशन आ जाती है, मीडियन लोकेशन आ जाती है, मोड आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है, वेरिएंस आ जाता है, रेंज आ जाती है। These all are basically the formulas by which we can get some information from the data. ठीक है? अब for example, now there are two types of statistical concepts. Remember one thing. Number one is the population. Number two is the sample. What is the difference between population and the sample? Population और sample में क्या फर्क होता है? For example, let's take the population of Hyderabad. कितने होगी? चलो कराची की बता दो। 4.5 CR तकरीबन, जो हमें पता है, जो रिटर्न में उसकी बात नहीं कर रहा, जो हमें पता है भाई कराची की जो पॉपुलेशन है तकरीबन 4.5 CR तक की पॉपुलेशन है। अब आपके पास डेटा दो किस्म से आता है। एक वो डेटा जो होता है आपका पॉपुलेशन डेटा। पॉपुलेशन डेटा वो होता है जिसके अंदर आपके पास सारा डेटा अवेलेबल है। The second one is the sample, which is basically the subset of the population. For example, मैंने आपसे कहा कि भाई कराची के अंदर 4.5 CR पॉपुलेशन अवेलेबल है कराची के अंदर, पर हम जो अपनी रिसर्च परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस पॉपुलेशन को परफॉर्म करना चाह रहे हैं जो आईटी से रिलेटेड है। Now this is the sample. अब आईटी से रिलेटेड सर्कल कितने होंगे हमारे पास, कितने लोग? अब 4.5 CR में से आपको बिल्कुल तकरीबन कोई कितने मिल जाएंगे? 1 से 1.5 लाख। इससे ज्यादा लोग आईटी में नहीं है कराची। हालांकि ये भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन दिस इज द सैंपल ऑफ द कंप्लीट पॉपुलेशन। या फिर आप ऐसे ही ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपको पता है हैदराबाद की पॉपुलेशन तकरीबन 1 CR के आसपास होगी, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, ठीक है? लेकिन कितने लोग वोट देते हैं? फॉर एग्जांपल वोटिंग कैपेसिटी कितनी है हमारे पास? हमारे पास वोट दे रहे हैं भाई तकरीबन एक 1 CR में से तकरीबन आपके पास कोई 2 लाख से 3 लाख लोग क्या करें, वोट दे रहे हैं। तो हमारा सैंपल क्या हो गया? दोज पीपल जो वोट देने के लिए आते हैं, अब वो हमारा एक सैंपल है, ठीक है? तो पॉपुलेशन में और सैंपल में क्या फर्क है? अब ये क्या कह रहे हैं? अ पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ इंटरेस्ट टू अ स्टैटिस्टिक प्रैक्टिशनर। आप एज अ स्टैटिस्टिक्स प्रैक्टिशनर और अ डेटा साइंटिस्ट, आप जो कंप्लीट पॉपुलेशन को लेते हो अंडर द ऑब्जर्वेशन, दैट इज द कंप्लीट पॉपुलेशन। लेकिन इसमें से a sample is a set of data drawn from the population, जिसके ऊपर आप अपनी ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे या जिसके ऊपर आप टेस्टिंग परफॉर्म करोगे, ठीक है? नाउ फॉर एग्जांपल ऑल 5 million Florida voters, for example, now potentially very large but less than the population, for example sample of 765 voters exit polled on election day, in the same way as I already told you about Hyderabad। हमारे पास टोटल पॉपुलेशन जो बेसिकली अवेलेबल है हैदराबाद की 1 CR, जिसमें से लोग कितने भाई वोट देने जा रहे हैं? Now every population contains some parameters and a sample contains statistics. Okay, how we see the next. These are some parameters here. यहाँ पर आप देख सकते हो populations have parameters, all are the parameters. जो भी हमारे पास data available है, this is the parameter. Now, but whenever we are talking about the sample, this contains a static, or you can say the statistics, statistical data. इसके ऊपर आप अपना statistics perform करोगे, ठीक है? Now, these are some methods. Descriptive statistics are methods of organizing, summarizing, and presenting data in a convenient and informative way. These methods include graphical techniques, numerical techniques. The actual methods used to depend on the information we would like to extract.
Are we interested in measures of central locations or the are we the measure the variability especially? बेसिकली हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं to organize, to summarize and to present a data conveniently. Now it depends कि आप क्या चाहते हो और किस तरह की इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो फ्रॉम द डेटा. अगर आप चाहते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो तो आप उस तरह के प्रॉब्लम्स सॉल्व करोगे या यू कैन से कि आप उस तरह के एल्गोरिथम अप्लाई करोगे. लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप न्यूमेरिकल डेटा निकालना चाहते हो तो आप न्यूमेरिकल टेक्निक्स अप्लाई करोगे. उसके अलावा बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि हम मेजर कर रहे हैं लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए आपको डेटा. फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं इसकी कोविड-19 की, आपको पता है कि भाई कोविड-19 के अंदर बहुत सारे लोगों को कोविड भी हुआ और काफी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास इंटरनेट पे अवेलेबल थी, अभी भी है अवेलेबल. बेसिकली व्हाट आई मीन टू से दैट कि उस टाइम पर आपने हर जगह पर आपको ये कोविड-19 लगा. जैसे यहाँ पे इंटरनेट ओपन करते हो हर जगह पर कोविड-19. दैट मींस वी हैव अ डेटा व्हिच कंटेन्स all the information of those people जो इफेक्ट हुए from COVID-19. We have the all information of those which are affected but they are now survived or you can say जिन्होंने इस चीज को ओवरकम कर लिया. ठीक है, फिर हमारे पास उसका भी उसी का डेटा है भाई इनको इफेक्ट तो हुआ लेकिन ये बेचारे यहाँ से दुनिया से चले गए. अब आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए? What do you want? आप किस तरह की इंफॉर्मेशन करना चाहते हो? अगर आप चाहते हो ये देखना कि भाई कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन की इफेक्ट हुई, कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन की सर्वाइव हुई, कितनी पॉपुलेशन जो है वो आपकी सर्वाइव ना हो सकी, तो उसके लिए आप उस तरह के ऑपरेशन को काम करोगे. लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई मैं ये डिटेक्ट करना चाहता हूं कि कोविड-19 आखिर हुआ कैसे, या किसी के ऊपर अगर इफेक्ट करता है तो वो किया कैसे, या फिर अगर मुझे कोई इफेक्ट होगा तो मैं कौन से सिस्टम्स को आइडेंटिफाई करूं और कौन से सिस्टम्स को आइडेंटिफाई ना करूं, तो उसके लिए आप उस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करोगे. लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके पास ये काफी इंफॉर्मेशन है लेकिन ये मेरे किसी काम की नहीं, मुझे यूजर्स को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से शो करवानी, तो फिर आप उस हिसाब से उसके ऊपर. ठीक है, इट डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए and what is the problem. As I already told you, whenever we are talking about data science, you need to identify the problem first and then get some solutions for that. ठीक है, थोड़ा सा आगे आ जाते हैं. Now, what is the variable? A variable in some characters of a population or a sample is, for example, भाई क्या है स्टूडेंट ग्रेड्स. दिस इज दी वेरिएबल कि भाई स्टूडेंट के जो ग्रेड्स हैं वो क्या क्या है. दिस इज द वेरिएबल. द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आर द रेंजेस ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फॉर अ वेरिएबल दैट इज फ्रॉम 0 to 100. ठीक है, दो वेरिएबल हो गए, एक स्टूडेंट मार्क्स, एक स्टूडेंट grades. Now data are the observed values of variable. Now इस values के ऊपर आप observation करते हो, in the end you will get some output which is basically the grades. As we have already done this. मैंने आपको पहले भी करवाया. क्या था हमारे पास, क्या थे सिर्फ और सिर्फ marks lists. We need to identify what is the information from it. जैसे कि grades क्या है, जैसे कि टॉप स्टूडेंट कौन सा है, जैसे कि रैंकिंग क्या बन रही है, या फिर अगर आप एक और इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं कि एवरेज मार्क्स लोग कितने उठा रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि भाई हमारे पास फिजिक्स एक सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट फिजिक्स के अंदर एवरेज मार्क्स स्टूडेंट ने कितने उठाए जो हमने लास्ट टाइम परफॉर्म किया, उसके अंदर हम ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. ठीक है, on the average you can make some decisions that my class is not performing well or my class is performing more better than other classes. ठीक है, for example my class is not performing well. Now you can do some efforts ताकि आपकी वो क्लास इससे अच्छा परफॉर्म करे.
डिसीजन मेकिंग के लिए आपको ये स्टैटिस्टिकल आंसर जरूरी है कि भाई एवरेज क्या है, मीन क्या है, वेरिएंस क्या बनता है, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होती है, ये सारी चीजें भी अगर डेफिनेशन ये पढ़ लीजिएगा, वैसे तो बताने की जरूरत नहीं, मैं फिर पढ़ा देता हूँ। Discrete variables are variable that can only specify values like whole number. These are the discrete variables. Continuous variables are variable that theoretically any value between two specified limits, for example a to b. Example is time, height, weight, age. Now these are some types of variables in statistics. Number one is discrete, number two is continuous. Discrete के अंदर for example कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है. For example, I am saying that find out a house which contains maximum number of rooms. तो maximum number of rooms कितने हो सकते हैं? It can be 1, it can be 2, it can be 3, it can be 4, it can be unlimited. क्योंकि हमें नहीं पता कितने होंगे. But for example, if I want to say that if find out those people which are infected from the COVID-19 and they have the age range from 10 years to 40 years. Now we know that the data will rely inside the range of 10 to 40. So these are the continuous variables. Right? Mathematician. ऐसे सही कह रहा हूं ना? गलत तो आप पढ़ सकते हो क्योंकि आप मैथमेटिशियन. ये अच्छी बात है, हमारे पास एक मैथमेटिशियन बैठा हो. अच्छा मुझे पता नहीं था, ये पहुंच गया उधर मेरे डिपार्टमेंट में, तो मुझे पता चला मैथमेटिक्स को. Now these are some numerical descriptive techniques to find out some numericals, to solve some numerical problems. For example, we have the measures of center location. अगर आप चाहते हो कि भाई सेंटर लोकेशन फाइंड आउट करनी है, भाई सेंटर लोकेशन क्या है हमारे डेटा में. सेंटर लोकेशन बेसिकली हम एवरेज को भी कहते हैं, राइट. अब अगर आप सेंटर लोकेशन की बात करते हो तो उसके लिए हमारे पास कौन से फॉर्मूला है? भाई मीन है, मीडियन है, मोड है. मीन, मीडियन, मोड. What is mean? What is median? What is mode? वो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं वैसे थोड़ा सा बता दूं आपको. मीन नॉर्मली हम कहते हैं एवरेज. भाई एवरेज क्या होती है कि भाई आपने सेंटर लोकेशन फाइंड आउट करनी है, एवरेज. अच्छा कहीं ना कहीं आपके साथ ये प्रॉब्लम करेगी. मीन क्या होता है? हर जगह पे सेंटर लोकेशन फाइंड करके नहीं देती. ऐसे कभी कभी आपको मीन लोकेशन काम आएगी, लेकिन वो तब काम आएगी जब आपका डेटा लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो. ठीक है, जब आपका डेटा लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपका डेटा बिल्कुल एक एग्जैक्ट करेक्ट फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है, इसके ऊपर सिर्फ जाके आप ऑपरेशन को काम करो, कुछ करने की जरूरत नहीं. तब आपके पास ये मीन लोकेशन आपको सेंट्रल लोकेशन निकाल के दे देगी. लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आपका डेटा लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, जिसके अंदर बहुत सारे वैल्यूज ऊपर नीचे हो रही है, चेंजेस हो रही है और बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस हो रहे हैं. तब आपके मीन लोकेशन आगे काम नहीं करती. इसके बाद हमारे पास क्या आता है? मीडियन. Now median does not depend on the linearity or you can say the distributed property of a list. ठीक है, किसी भी रेंज के दरमियान क्या डिफरेंस आ रहा है उसके ऊपर मीडियन इफेक्ट नहीं करता, डिपेंड नहीं करता. क्यों? मीडियन का काम क्या होता है कि आप नंबर्स को एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर रख दो, फिर जो उसकी सेंटर लोकेशन होगी खाली उसको उठाओ, वही आपका मीडियन हो गया, वही आपकी सेंटर लोकेशन. राइट. फिर आता है मोड. मोड इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर डेटा. कि आपके डेटा के अंदर रिपीटेशंस कितनी आ रही है और कौन सी वैल्यू ज्यादा रिपीट हो रही है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि भाई हमारे स्टूडेंट डेटा की बात करते हैं, स्टूडेंट मार्क्स. अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने 50 मार्क्स उठाए. ठीक है, 10 स्टूडेंट में से तकरीबन 5 लोगों ने 50 मार्क्स उठाए आउट ऑफ 100. तो आपकी सेंटर पोजीशन क्या होगी? क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ठीक है. फिर हमारे पास होते हैं मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी. अब वेरिएबिलिटी के मेजर्स किस तरीके के होते हैं? रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. उसके अलावा हमारे पास मेजर रिलेटिव
रिलेटिव स्टैंडिंग, उसमें आप क्या रहता है, परसेंटाइल रहता है और क्वार्टिलाइज रहता है। फिर हमारे पास है फीचर्स ऑफ लीनियर रिलेशनशिप व्हिच कंटेन्स covariance, correlations, determination, least squares line। ये क्या है, यहाँ पढ़ेंगे। फिलहाल जो बेसिक हमें पढ़ना है वो क्या है, measure of central location and the measure of variability। Now this is the mean location। How we can find the mean? अच्छा, mean भी हमारे पास एक नहीं होती, अलग-अलग किस्म की मीन्स होती है। इसमें हमारे पास अर्थमेटिक मीन आता है, ज्योमेट्रिक मीन आता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन की फिलहाल, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे, वो भी बहुत जरूरी है, वो भी हम आगे देखेंगे कहां कहां आती है। लेकिन बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन के अंदर हमारे पास क्या क्या रहता है, इस तरीके से फॉर्मूला क्या है इसका, ये इट इज रिटन, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जस्ट दी सम ऑफ एवरेज वाला फॉर्मूला था, mean is equals to average, ठीक है। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस और यू कैन से द एवरेज, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और यू कैन से द नंबर ऑफ एवरेज, ठीक है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बता रहा हूं आपको। मैथ्स की क्लास में सोना हम भी सोते थे जब हमने मैथ्स पढ़ी थी, लेकिन ये अब आप इस चीज के ऊपर आप अपनी फ्यूचर डिसाइड करोगे, तो ये बहुत जरूरी है ना। मीन क्या है भाई, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फॉर एग्जांपल अगेन हम वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसमें हमारी मीन लोकेशन क्या हो जाएगी, 2 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 डिवाइड बाय 6 क्या बनता है, 6। तो हमारी मीन क्या आ रही है यहाँ पर, 6, ठीक है। अगर हमें इसकी मीन निकालनी हो तो किस तरीके से निकाली थी हमने पहले, बताओ तो कैसे निकालूं, माय एरे डॉट मीन, ऐसे ही। तो आपके पास मीन लोकेशन क्या आ रही है, 6.0, ठीक है। अब मैंने आपसे बात कही थी क्या, ये मीन हमेशा आपको सेंट्रल लोकेशन निकाल के नहीं देता, तब जब आपके पास जो डेटा होता है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। फॉर एग्जांपल क्यों ना हम इसके अंदर एक और डेटा ऐड कर देते हैं और इसकी वैल्यू दे दी हमने 33। अब here you can see that the last element is totally different from the other elements। कैसे भाई, अगर जो आपकी शुरू की जितनी भी एलिमेंट्स है वो अंडर 10 आ रहे हैं, ये 33 है, वो आपकी बाकी लोकेशन से बहुत दूर है, ठीक है। अब देखिए आपकी मीन कैसे चेंज हो जाती है। Here you can see now your mean location is 9। आप मुझे बताएं आप क्या, आपकी ये 9.8 मतलब तकरीबन 10, चलो 9 समझ लो, इसको 10 भी छोड़ दो, 9 समझ लो। अब ये 9 की आप बात करें तो क्या ये हमारी सेंटर लोकेशन है, नो, दैट मींस दिस डेटा इज नॉट लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसी वजह से हमारी जो मीन लोकेशन आ रही है, और यू कैन सी द सेंटर लोकेशन फ्रॉम द मीन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो आप डेटा को कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका डेटा सही है या नहीं है, इस तरीके से। जो आपने देखा कि आपके पास जो मीन आ रही थी that was totally, or you can say it is not the center location, that means your data is not correct। अब इसको करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे, लेकिन यहां से हमने आइडेंटिफाई कर दिया that my data is not correct। क्यों, क्योंकि हमारे पास मीन बहुत गलत आ रहा है, ठीक है। सेंटर पॉइंट नहीं आ रहा। भाई ये सेंटर लोकेशन के ही फॉर्मूला है। अगर आपको सेंटर लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है तो आपके पास कुछ तरीके होते हैं सेंटर लोकेशन निकालने के, जिसमें आपके पास मीन एवरेज होता है, उसके अलावा मीडियन होता है, उसके अलावा मोड होता है, सारे देख रहे हैं, ठीक है। सेंटर लोकेशन नहीं है ना ये भाई। पहले जब हमारे पास डेटा लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड था, मतलब एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो सेंटर लोकेशन दिखा रहा था, 6 तो थी सेंटर लोकेशन, 6 आपकी सेंटर लोकेशन थी। लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर एक ऐसा डेटा
टफ हो गया था डेटा, तो आपकी पूरी की पूरी मेन लोकेशन ही गलत हो गई। अब आपके पास सेंटर पॉइंट नहीं मिला, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना कि भाई कैसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सही है या गलत है। इससे क्या फायदा होगा, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा डेटा करेक्ट है। वन बाय वन चेक करना पड़ता है। सबसे पहली चॉइस और सबसे इफेक्टिव चॉइस होती है मीन निकालना। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट द मीन। जैसे ही आपको पता चला कि मीन अब सही नहीं आ रही, फिर आप चेंज करो, फिर आप मीडियन यूज करिए। अब मीडियन जो होता है, मैंने आपको क्या बताया था, मीडियन क्या कैसे काम करता है कि आप सारे एलिमेंट्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में प्लेस करो, ठीक है। उसके बाद जो आपको दिख रही है सेंट्रल लोकेशन, यू विल फाइंड आउट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये ऑड नंबर है, क्या है ऑड नंबर, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर ऑड, तो बेसिकली आप क्या करोगे कि आपने उसका टोटल नंबर लेना है, उसमें +1 करना है, डिवाइड बाय 2 कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं अभी, ये कितने एलिमेंट्स हैं, 7 एलिमेंट्स हैं। अब 7 एलिमेंट्स, 7 + 1 = 8 डिवाइड बाय 2 = 4, तो सेंटर लोकेशन क्या होगी, 1 2 3 एंड 4, which is your center location or you can say the median, ठीक है। बट क्योंकि ये अभी मैंने पहले से ही सॉर्ट किया हुआ, अगर ये सॉर्टेड नहीं है तो आपको इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसका वैल्यू निकलेगी। असेंडिंग हो डिसेंडिंग और सब टू यू, दैट डजंट मैटर्स, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया ऑड। यू कैन आस्क मी कि सर अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, इवन हो, तो क्या करना चाहिए। तो इवन में हम नॉर्मली क्या करते हैं, वही सेम तरीका इस्तेमाल करना है। इवन में फॉर एग्जांपल दिस दे कंटेन्स हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 6, ठीक है। 6 डिवाइड बाय 2 = 3, तो आपका जो मेन लोकेशन होगी वो क्या होगी, 3 और 4, 3 और 4, एलिमेंट नंबर 3 और 4, तो 3 क्या है आपका 6, 4 क्या है आपका 7, तो आप क्या उठाओगे 6 + 7 डिवाइड बाय 2, तो आपके पास जो एवरेज आएगी वो आपकी क्या होगी, मीडियन। फॉर एग्जांपल 6 + 7 = 13 डिवाइड बाय 2 = 6.5, एंड नाउ द मीडियन लोकेशन इज 6.5, ठीक है। मीडियन कैसे कैसे फाइंड आउट होता है, क्या सेंट्रल लोकेशन उस तरीके से निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड बाय 2 = 3। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितना नंबर है, 3 + 1 4। अब ये दोनों आपके पास क्या आ गई वैल्यू, था आपने दोनों वैल्यू उठाई, दोनों को प्लस किया, डिवाइड बाय 2 निकाला, आपके पास एवरेज मीडियन निकल गया। देखो सेंटर कहां ढूंढते फिरोगे, यहाँ तो अभी 6 एलिमेंट्स हैं, आपके पास 6000 एलिमेंट हो तो फिर कैसे ढूंढोगे, तो ऐसे नहीं है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालोगे, अरे सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अरे लेंथ यूज करते थे ना हम, लेंथ आपको निकाल के देगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अगर वो ऑड है तो +1 डिवाइड बाय 2, अगर वो इवन है तो डिवाइड बाय 2, जो लोकेशन आती है वो +1 वो लोकेशन, दोनों की वैल्यू उठाई, आपस में प्लस की, डिवाइड बाय 2 किया, आपके पास वैल्यू आ गई मीडियन, ठीक है राइट। अभी ये इवन है, इवन का मतलब होता है 6 डिवाइड बाय, मतलब यहाँ पे 6 है ना, ये 6 डिवाइड बाय 2 = 3, तो थर्ड लोकेशन पे क्या है 6, +1 लोकेशन पे क्या है 7, 6 + 7 = 13 डिवाइड बाय 2 = 6.5, तो आपकी मीडियन क्या निकल के आ गया 6. और है तो +1 डिवाइड बाय 2, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहां भी बताया था, (33). अब यहां पे ये कितने एलिमेंट्स आ गए 7 + 1 = 8 डिवाइड बाय 2 4, तो मीडियन क्या हो गया, मीडियन क्या होगा आपका, लोकेशन इसकी क्या है 4। अच्छा यहां पर आप एक सवाल है सर, आप इंडेक्स नंबर देखिए, इंडेक्स नंबर की बात ना करें, हम अभी स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, आप एरे नहीं पढ़ रहे, ठीक है। अगर ये 4 है तो उसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो आई लोकेशन होगी वो क्या होगी 3 होगी,
ठीक है, आई लोकेशन में और लोकेशन में ये फर्क होता है। आई मतलब इंडेक्स लोकेशन, और लोकेशन का मतलब क्या होता है कि आप जब काउंटिंग के हिसाब से जो सिंपल लोकेशन होती है दैट इज लोकेशन। ठीक है, इसकी आई लोकेशन क्या है 3। इज दैट क्लियर? मीडियन में और उसमें क्या फर्क है? Okay, now the next is, now how you can get, अच्छा okay, remember one thing, how we can denote B locations। ठीक है, हमारे पास अगर हमें पॉपुलेशन की मेन लोकेशन निकालनी है तो हम उसको डिनोट किससे करते हैं? सिंपल क्या कहते हैं? ये। ठीक है, इस तरीके से अगर आप नॉर्मल अपने किसी भी सैंपल की मेन लोकेशन निकाल रहे हैं तो आप उस x पावर नहीं आप क्या लगा दो बाय लगाते हो, दैट इज बेसिकली द मेन लोकेशन। ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है पर आपको पता होना चाहिए। This is the formula. Now here you can see the formula here. दोनों formula same होते हैं, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ डिपेंड ये कर रहा है कि एक पॉपुलेशन के ऊपर है और एक आपके सैंपल के ऊपर। ठीक है, पॉपुलेशन को हम नॉर्मली कैपिटल N से शुरू कर रहे हैं और सैंपल को हम स्मॉल n से। सिंपल इज दैट। Here you can see this symbol is normally known as the sum of all। ठीक है, here you can see the sum of n। n मतलब any element से from I to x I लोकेशन, जितने भी आपके लोकेशन हो जाते हैं, फिर हम आगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कोई सवाल है तो प्रश्न? The arithmetic mean is appropriate for describing measurement data, for example, heights of people, marks of student papers, and etc. It is rigidly defined, easy to calculate, simple to understand, and easy to interact. It is based on all the observations, capable of further mathematical treatments. It is stable in experiments of repeated sampling from a distribution. अच्छा, इसके अंदर एक आपको यहाँ पर पॉइंट नजर आ रहा होगा, easy to calculate, simple to understand, and easy to interpret। ठीक है, it is simple, easiest है, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आपस में सम करना है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने कर दिया, सिंपली आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। सिंपल होता है। ठीक है, फिर डिमेरिट्स मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। Disadvantage क्या है? It is seriously affected by extreme values called as outliers, as I already demonstrated to you। आपको नजर भी आया, आपने देखा है, जैसे ही हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू इंटर होती है हमारे डेटा के अंदर, the complete arithmetic mean goes wrong। ऐसे तब क्या हुआ, सारी एवरेज आपकी खराब हो गई। These extreme values are known as outliers, which is the basic term or terminology when we are talking about data science। आपको find out करना होता है whether your data contains some outliers or not। You need to delete or remove these outliers to get some extreme performance from your algorithm or model of machine learning or deep learning, whatever it is। ठीक है, आप कोई भी मॉडल अप्लाई करोगे तो आपको सबसे पहले ये आउटलायर्स देखने हैं। अब why we cannot remove the outlier? You can say that कि सर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू सही आ रही है, कुछ आउटलायर्स आ रहे हैं, तो फिर हमारे को इसको रिमूव करने की जरूरत क्या है? देखिए, जब आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की बात करते हैं, मॉडल्स की बात करते हैं, डीप लर्निंग मॉडल्स की बात करते हैं, ऑल दीज मॉडल्स और एल्गोरिथम्स, दीज आर बेसिकली बेस्ड ऑन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर बेस करते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई आपका मेन लोकेशन निकालने के बाद उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो आपकी मीनिंग खराब हो गई। कोई आपका बेसिकली मोड निकाल के करना चाह रहा है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास यही आउटलायर दो दफा हुआ है, सेम वैल्यूज पर एक्सट्रीम वैल्यूज है, लेकिन दो बार है, आपका मोड भी खराब हो गया। क्या मोड के जरिए रीसेट करोगे, नहीं निकाल सकते, कैसे हुआ बताओ आगे फ्रीक्वेंसी। कहने का मकसद, you need to remove these outliers। For example, as soon as a billionaire moves into a neighborhood, the average household income increased beyond what it was previously। Not a good measure for extremely skewed distribution
can locate a value which doesn't exist in the data. For example, यहाँ पर अगर आपका ये outlier available है in your data and you are finding some, for example, कोई आप probability निकालना चाहते हो या कोई जवाब मांगना चाहते हो, it will basically, or you can say usually show those data which are basically not available in your data. आपके डेटा में वो होंगे ही नहीं, वो आपको शो करवाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो एल्गोरिथम है वो बेस्ड है किसके ऊपर? मैक्सिमम और स्मॉलर वैल्यूज दोनों के ऊपर जाता है। तो आपके पास एक्यूरेसी सही नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, आउटलायर्स को रिमूव करते हैं, लेकिन आउटलायर मिलेंगे कैसे? यूजिंग स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। Now this is the median. How median works? Here you can see that, for example, is the odd number, just plus 1 divided by 2. क्या हो जाएगा? 10. जब ये 9 एलिमेंट्स हैं, plus 1 equals to 10 divided by 2 equals to 5. तो आपका जो median होगा वो क्या होगा? अब इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सॉर्ट करके देखिए कि सॉर्टिंग वैल्यू कहाँ पर है। आपकी सॉर्टेड इस तरीके से बनती है 0 0 5 7 8 9 12 14 and 22. Here you can see that 1 2 3 4 and 5. The fifth element is the median element, or you can see the central location of data. That is, अब यहाँ पर आप एक चीज नोट कर सकते हो कि अगर ये even है तो आपने even किस तरीके से निकालना है? You need to divide this. आपको ये find out करना है। पहले आपने इसको divide किया, divided by 2 equals to 5 plus 1 6. तो फिफ्थ और सिक्स्थ एलिमेंट को आपस में आपने क्या किया? प्लस कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब जो आपके पास वैल्यू आ गई दैट इज द मीडियन, और यू कैन से द सेंट्रल लोकेशन ऑफ योर डेटा, ठीक है। इस तरीके से मीडियन निकल रहा है, समझ आ गया? सवाल है इसमें पूछना, एनी क्वेश्चन? Now the mode. The mode of a set of observations is the value that occurs most frequently. What does it mean? I already told you. जब आप mode की बात करते हो, in mode we will find the frequency of elements. That which element is basically appearing most of the time. ठीक है? For example, अगर हम previous slide पे चले जाते हैं, तो यहां पर इसका मोड क्या होगा? इसमें मोड क्या है? 0, which will be basically mode. क्यों? क्योंकि जो 0 एलिमेंट है वो कितनी बार आ रहा है? मोस्ट ऑफ द टाइम आ रहा है। तो हमारी फ्रीक्वेंसी यहां पर 0 बन जाए, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप किसी दूसरे, फॉर एग्जांपल हम अपने डेटा की बात करते हैं, तो यहां पर अगर मैं फॉर एग्जांपल 2 लगा देता हूं, तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पर हमारे पास जो मोड है वो क्या है? 2. क्यों? 2 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे? 3 टाइम्स आ। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक नहीं 2 वैल्यूज रिपीट हो रही है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको कहा, अब हमारा जो मोड होगा वो क्या होगा? स्टिल 2. क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसकी है जो फर्स्ट वाला है। समझ आ गया? ये सवाल है, इसमें पूछ सकते हैं कि मोड कैसे फाइंड आउट हो रहा है। A set of data may have one mode or modal class or 2 or more modes. For example, अगर आप बात करते हो कि भाई दोनों सेम है, एक 2 उसके भी 2 है और 4 उसके भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो बेसिकली आपके पास अब एक नहीं 2 मोड्स आ जाए। One mode is 42, second mode is the 4, ठीक है। इस तरीके से mode is a useful for all data types, though mainly used for nominal data. What is nominal data? नंबर्स तो ये सारे नंबर्स पर ये न्यूमेरिकल डेटा ही तो है। जिसकी जो बेसिकली कोई पोजीशन लाया कर रहा हो। Now, for large data set, the model class is much more relevant than a single value mode. ठीक है?
जब आपकी बात होती है लार्ज डेटा की तो मोस्टली आपके पास मॉडल क्लास आती है, यू कैन से दैट के एक से ज्यादा मोड्स निकल के आते हैं जो रेलेवेंटली निकलते हैं। अगर आप बात कर रहे हो किसकी सिंगल मोड की तो वो नॉर्मली शॉर्टर डेटा के ऊपर काम करता था, लार्ज डेटा सेट के ऊपर नहीं करता। सैंपल एंड पॉपुलेशन मोड्स आर कंप्यूटेड द सेम way, भले वो फिर सैंपल हो या पॉपुलेशन हो दोनों सेम हो जाता है। नाउ दिस इज द मॉडल क्लास, हियर यू कैन सी दैट द जीरो आपके पास यहाँ पर दो बार आ रहा है, व्हिच मींस दैट व्हिच ऑब्जर्वेशन अपीयर्स मोस्ट ऑफन द मोड ऑफ दिस डेटा सेट इज जीरो। हाउ इज दिस अ मेजर ऑफ सेंट्रल लोकेशन? अब ये तो सेंट्रल लोकेशन नहीं है। मैंने क्या कहा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका होता है या फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन। अगर आप इस डेटा के ऊपर अरिथमेटिक मीन काम कर रही है तो ठीक है, लेकिन हियर यू कैन सी दैट कि अरिथमेटिक मीन आपके यहाँ पर काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आपके पास कुछ वैल्यूज टोटली डिफरेंट है। ज्यादा की बात नहीं है, टोटली डिफरेंट है। तो यहाँ पर फिर आप क्या अप्लाई करोगे? अपना मीडियन। अब अगर मीडियन भी यहाँ काम नहीं आता तो आप क्या अप्लाई करते हो? मोड। अब किस जगह पे मीडियन यूज होगा, किस जगह पे मोड यूज होगा, किस जगह पे आपका मीन यूज होगा? ठीक है। Now here you can see that if a distribution is symmetrical, the mean, median and mode may coincide at the same point. And you can see that, for example, this is your data and we have the representation of a data which is basically इस तरीके से represent करते हैं अपने डेटा को। यहाँ पर आपने देखा कि आपकी मीन, मीडियन और मोड दोनों एक ही लोकेशन पे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो आपका डेटा है वो सिमेट्रिकल, ठीक है। सिमेट्रिकल मतलब linearly distributed. There is no such differences between data, ठीक है। मैक्सिमम डिफरेंसेस नहीं आ रहे, जो बेसिकली आपका सेंट्रल एक तरीके से मतलब एक सिंगल वे में वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। हाँ, मतलब किसी भी एक सिंगल वे में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब सीक्वेंस एक किसी सीक्वेंस के हिसाब से आपका डेटा बना हुआ है, लेकिन जब आप डेटा आपका सीक्वेंस में नहीं होता, सीक्वेंस भी नहीं, आप कह सकते हो लीनियर वे में एक सीधे ट्रैक पे चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप हैदराबाद की रोड ले लो, तो वो लीनियर है या नहीं है? नहीं है। क्यों? खड्डे बहुत है, तो डेटा आपका चेंज हो रहा है। तो जब आपका डेटा चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है, ऐसे ही है। तो ये चीजें इसी तरीके से चेक की जाती है। बट मोस्टली इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, मतलब सिमेट्रिकल नहीं है, तो आपका डेटा किस तरीके से शो होगा? Here you can see that the mode कुछ और बन रहा है आपका, but here you can see the mode may be the center location, लेकिन आपका मीडियन भी center location के आसपास है, लेकिन मीन बिल्कुल अलग है। जैसे कि हमने देखा हुआ क्या कि जब हमने हमारा डेटा चेक किया कि जब हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट आगे तो टोटली डिफरेंट था, तो हमारी मीन भी टोटली डिफरेंट टाइप से सही। For symmetrical distribution, mean must be equal to median and median is also equal to mode, ठीक है। जब आपके पास एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सिमेट्रिक डेटा होता है, तो आपके पास मीन और मीडियन और मोड दोनों आपस में बराबर होते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल वी हैव अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मोड किसी न किसी डिफरेंस है, किसी न किसी एक डेविएशन के ऊपर आपके पास डेटा चेंज हो रहा है, तब आपका क्या होगा भाई? मीन जो है वो ग्रेटर देन होगी मीडियन से, और मीडियन जो है वो ग्रेटर देन होगा मोड से। बट फॉर द नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपके पास जो मीन होगी दैट इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मोड, व्हिच इज बेसिकली इक्वल्स टू मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2, ठीक है। चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल हम अपने डेटा को चेक करते हैं, जो हमारे पास डेटा था। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर मोड क्या आ रहा है? 2 और 4, ठीक है। पहले हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। नाउ 2 मोड किसके बराबर था? 3 मीडियन माइनस 2। अगर हम इसकी मीडियन की बात करें, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड
10 इवनली इवन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा 1 2 3 4 एंड 5, मतलब ये एंड 6, 4 + 6 = 10 डिवाइडेड बाय 2 = 5। तो आपका मीडियन क्या निकल आया 5। तो आपका मीडियन किसके बराबर भाई, मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 = 15। 15 माइनस 2 मीन। अब मीन निकाल के देखो क्या आ गया 7, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 2 = 7.7 पूरा बताओ, क्योंकि हमने जब तुम कैलकुलेट किया 7.7 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बनेगा करके देखो 15.4। और आपका जो मीडियन बन रहा है वो क्या था 5 मल्टीप्लाई बाय 3 = क्या होगा 15 15 माइनस 15.4 तकरीबन 0.4 आएगा। आप इसको 0 कंसीडर कर सकते हो क्योंकि 0.5 से नीचे, ठीक है। अगर आप इसको राउंड ऑफ करें क्या बन गया 0, लेकिन दिस इज नॉट इक्वल टू द मोड, क्योंकि मोड आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है 2 एंड 4, क्योंकि दिस इज पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर यहीं पर ये नेगेटिवली होता तो हमारे पास जो डेटा बनता वो इक्वल हो जाता मोड। This is the way how you can find that your data is positively distributed, how or your data is for example equivalent। equivalent कैसे कि अगर वो linearly distributed है तो आपका मोड मीडियन और मीन तीनों बराबर होने चाहिए। यहाँ पर तीनों बराबर नहीं है क्योंकि मीडियन क्या आ रहा है 5 आ रहा है, मीन क्या आ रहा है 7.7 आ रहा है, और आपका जो मोड है वो कितने आ रहा है हमारे पास 12 नहीं 2 आ रहा है, 2 आ रहा है सर। तो आपके पास पहले 2 से फिर 4 से कर रहे हैं। Now this is how you can find out that your data is correct in a correct format or not। अगर ये करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है तो आपको इसको करेक्ट फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं, you will delete all the duplications first। आप इसमें से डुप्लीकेशंस निकाल दोगे। जैसे ही अगर मैं इसमें से डुप्लीकेशन निकाल देता हूं, फॉर एग्जांपल अब अगर इसमें से आपने डुप्लीकेशन निकाल दी तो क्या निकलेगा हमारे पास यूनिक क्यों नहीं निकल रहा? तो यूनिक अगर हमने निकाल लिया इसका तो हमारे पास डेटा क्या बन गया 2 4 6 7 8 9 9। अब इसके अंदर से आप डेटा निकालो, इसके अंदर से टोटल बताओ टोटल एलिमेंट कितने हैं यूनिक में 7 है, 7 डिवाइडेड बाय और 7 है तो 7 + 1 = 8 डिवाइडेड बाय 2 = 4। तो आपका यहां पे मीडियन क्या बनेगा 7। मीन क्या निकलेगी इसकी 9 पॉइंट समथिंग निकल रही थी मेरे ख्याल से, निकाल के चेक करो इसकी। नाइन पॉइंट 8 तकरीबन 10 बन रही है, राइट। और आपका मीडियन क्या रहा था 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि मोड यहाँ पर क्या है मोड कोई भी नहीं, राइट। मोड हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गई, मतलब जो डुप्लीकेशन खत्म हो गई, तो डुप्लीकेशन खत्म हो गई तो मोड हमारे पास खत्म हो गया। अब आपके पास मोड नहीं है, मोड बेसिकली तो 0 कर दो आप, बिल्कुल 0, राइट। अब मुझे बताएं आपके यहाँ पर जो मीन है, मीन क्या है मीन क्या है 9 मतलब 10 है। मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। तो ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूशन हो गई ना आपकी। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका जो मीन है मीन लोकेशन इज दी ग्रेटर देन
median and the median is greater than mode. That is why this is the positive distribution. अगर आप बात करें तो इससे पहले जब हमारे पास डुप्लीकेशन आ रही थी, एट दैट टाइम भी आपके पास जो आपकी मेन लोकेशन थी वो भी क्या थी, ग्रेटर देन मीडियन, एंड द मीडियन इज ग्रेटर देन 2 और 4 दोनों के मध्य ग्रेटर देन था। जितने भी हमारे पास नोड आ रहे थे सबसे ग्रेटर देन था। दैट मींस आवर डेटा वाज पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट नेगेटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अगर वो आपका सिमेट्रिकल होगा तो आपका मीन, मीडियन एंड मोड मस्ट बी इक्वल। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम ये 33 निकाल दें, ठीक है, हमने ये 33 निकाल लिया। अब हमारे पास आप ये भी निकाल देते, किसी भी हम हटा देते। चलो तो आपके पास जो मीन निकल रही है, क्या निकल रही है, 4.8 तकरीबन 5 के बराबर है। ऐसा ही अब अगर फॉर एग्जांपल ये कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 एलिमेंट मतलब इवन एलिमेंट्स है। 6 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 3, तो थर्ड एलिमेंट क्या है आपका 6 प्लस 1, फोर्थ एलिमेंट क्या है आपका 7, 6 प्लस 7 इक्वल्स टू 13 डिवाइड बाय 2 6.5, तकरीबन बराबर है आपके किसके, मीन। इतना फर्क तो आता है डेटा के, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम तब होगा जब आपकी सारी एलिमेंट सेम होंगे। इतना तो चेंज आएगा डेटा के अंदर, लेकिन ज्यादा चेंज नहीं, और ये चेंज हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। जब भी आप फॉर एग्जांपल आगे मशीन लर्निंग पे काम करोगे तब आपके पास एक्यूरेसीज होगी और भी बहुत सारे एप्पल स्कोर है, लॉस स्कोर है, और बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे पास, इसको आप कहते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स, और यू कैन से जिसके अंदर आप डेटा को एनालाइज करते हैं वेदर और जो रिस्पांस हमारे पास आ रहा है वो सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक्यूरेसी आती है, अब एक्यूरेसी फॉर एग्जांपल आपके पास आ रही है 78%। नेक्स्ट टाइम आपने दूसरे डेटा के ऊपर उसको रन किया या उसी के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करके रन किया, तो आपके पास डेटा में चेंजेस आ गई, फॉर एग्जांपल आपकी एक्यूरेसी अब आ गई 78 से 80 हो गई। दैट इज नॉट अ बिग डिफरेंस, मतलब बड़ा डिफरेंस नहीं। क्यों? क्योंकि डेटा आपके पास सही है और आपके पास जो वैल्यूज चेंज हुई इतनी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं। जब आपने देखा कि जब हमने जैसे इसके अंदर 33 ऐड किया था, हमारी मीन बिल्कुल ही चेंज हो गई थी। पॉइंट्स में आप एक नंबर आगे नहीं हुई थी, बिल्कुल चेंज हो गई, क्योंकि जहां हमें 6 चाहिए था या 5 चाहिए था वहां पे हमें बिल्कुल ही चेंज आ गया, 10 आ गया। ठीक है, with 3 measures from which to choose, which one should we use? Number 1, the most important question, भाई ये 3 measures तो आपके पास थे, मीन था, मीडियन था, मोड था, हमें कौन सा चूज करना है? हम कौन सा ले? द मीन इज जनरली आवर फर्स्ट सिलेक्शन। नॉर्मली हमने मीन ही निकालना होता है सबसे पहले, क्योंकि उसी के ऊपर हम डिपेंड करते हैं कि हमारा डेटा कैसे आएगा। ठीक है, देन however there are several circumstances when the median is better than mean, और सर्कमस्टेंसेस आपने देख लिए। क्या देखे कि जब आपके पास वैल्यू एक ऐसी वैल्यूज के अंदर ऐड हो जाती है जो बेसिकली टोटली डिफरेंट है, तो हमारी मीन काम नहीं आ रही, हमारा मीडियन फिर भी उसी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है, राइट। Then the mode is seldom the best measure for center location. One advantage the median holds is that is not as sensitive to extreme values as is the mean. As we all have seen that, जैसे ही हमने कोई एक ऐसा डेटा इसके अंदर एंटर कर दिया जो कोई डिफरेंट था, हमारी मीन बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी और वो बिल्कुल ही चेंज हो गई।
लेकिन अगर हम मीडियन की बात कर रहे हैं, वो आपने एक ऐसा डेटा ऐड करने के बावजूद भी वो उसी एरिया के ऊपर रिलाय कर रहा था जो बेसिकली द सेंट्रल लोकेशन हो रही। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हमने 33 ऐड किया था, तो वो भी अभी भी हमें कहीं कहां आइडेंटिफाई करेगा, 7 के ऊपर। मीडियन की बात करो 7 पे करेगा ना। टोटल नंबर कितने हैं भाई, 7 होगा। 7 + 1 = 8 डिवाइड बाय 2 4 1 2 3 एंड 4 हो जाए 7 नंबर। तो अभी भी उसी लोकेशन के ऊपर आइडेंटिफाई कर रहा है। लेकिन अगर आप मीन की बात करोगे वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो सेंसिटिव कौन है, मीन एज कंपेयर टू मीडियन। ठीक है, now here you can see we have some data जो बिल्कुल ही चेंज है। here you can see that कि हमारे पास एक नंबर है 07, नंबर में आप लिस्ट कह सकते हो 0 7 12 5 33 14 8 0 9 and 12. Here you can see the mean is basically 11 and the median is 8.5. Somehow they are in the same area, राइट। भाई इसका आप मीन निकालोगे तो आपके पास तकरीबन 11 आना चाहिए। अगर आप इसका मीडियन निकालोगे तो वो बेसिकली 8.5 के ऊपर आइडेंटिफाई कर रहा है, बट स्टिल दे आर एट द सेम पॉइंट। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये 33 है, 33 की जगह इसको हम 133 कर दें तो आपकी मीन क्या बन जाएगी, 21.0। नाउ द मीडियन इज स्टिल 8.5, but the mean is completely changed। क्योंकि मीडियन अभी भी उसी लोकेशन पे खड़ा है लेकिन मीन बिल्कुल चेंज हो। ठीक है, what you see in the new mean 21, the median stayed the same when there is a relatively small number of extreme observations, either very small or very large, but not both. The median usually produces a better matrix of the center of the data, as I already told you. अच्छा, एक और चीज है, यहाँ पर ये मीडियन भी तब ही सही लोकेशन पे आइडेंटिफाई करता है जब आपके पास स्मॉल नंबर ऑफ वैल्यू होती है जो एक्सट्रीमली चेंज होती है। यहाँ पर आपने देखा सिर्फ एक ही वैल्यू थी जो बेसिकली एक्सट्रीमली चेंज थी। अगर यहाँ पर एक की जगह 5 या 6 आ जाती तो फिर आपका मीडियन भी आउट हो जाता, चेंज हो जाता। जाहिर सी बात है, तो इसका मतलब ये होता है कि मीडियन भी तब ही इफेक्टिव काम कर रहा है जब आपके पास स्मॉल नंबर ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज है। ठीक है, तभी बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर जाहिर सी बात होगी चेंज। For ordinal and nominal data, the calculation of the mean is not valid. Median is appropriate for ordinal data. For nominal data, a mode calculation is useful for determining highest frequency, but not central location. Remember one thing. Now, what is ordinal? What is nominal data? We are talking about ordinal. एक होता है symmetric data. Symmetric data मतलब एक ही लीनियर वे में डेटा आपके पास आ, एट दैट टाइम मीन इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, बट देयर इज अ ऑर्डिनल डेटा, मतलब जिसके अंदर आपके पास कुछ डेटा तो सही आ रहा है, बिल्कुल एक ही लीनियर वे में आ रहा है, लेकिन एक या दो पॉइंट ऐसा जाते हैं जो बेसिकली कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। दोस आर द ऑर्डिनल डेटा। उस ऑर्डिनल डेटा पे आपका मीडियन सही काम कर रहा है। लेकिन अगर आपके पास ऑर्डिनल में नॉमिनल डेटा, आप लोगों ने नॉमिनल यू कैन से, आप लोगों ने शायद मेरे से इंटर के अंदर पढ़ा होगा ये, राइट। नॉमिनल डेटा बेसिकली डिपेंड करता है कि आप जब किसी एक लोकेशन के ऊपर रिलाय कर रहे होते हो उसको हम बेसिकली कहते हैं नॉमिनल डेटा। या आप चलो अगर आप इसको सिंपल वे में भी कवर अप कर लो, क्या आपके पास लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही, एक जैसे डेटा आ रहा है उसके अंदर डुप्लीकेशंस हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, एट दैट टाइम मीडियन भी काम नहीं करता।
क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास डेटा रिपीट हो रहा है, तो जब रिपीट हो रहा है तो आपका सेंटर लोकेशन तो चेंज हो रही है बार बार, वो सही से नहीं बता रहा वो आपको। उस टाइम आपका मोड काम करता है और मोड फ्रीक्वेंसी बताता है क्या आपका जो डेटा है वो किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर चल रहा है, नॉट द सेंटर पॉइंट। फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा। आप सिंपल वे में ले लो, जब आपके पास डेटा रिपीट हो रहा हो किसी लोकेशन के ऊपर बार बार, उसको हम नॉमिनल डेटा कहते हैं, नॉमिनल। ठीक है। Compute the mean, describe the center location of a single set of interval data. Compute the median, describe the center location of a single set of internal or ordinal data. दोनों पे काम करें। Compute the mode to describe a single set of nominal data, but this is the description, or you can say the find the frequency of the nominal data. ठीक है। Now geometric mean. As I already told you, there is a type of means. Number one was the arithmetic mean, number two was the geometric mean. Now what is the difference between arithmetic and geometric mean? Here you can see that the arithmetic mean is a single, or you can say the most popular and useful measure for the center location. However, there is another circumstances where neither the mean nor the median is the best measures when the variables is a growth rate of change. अब ये ग्रोथ रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक सीक्वेंस करवाया था, तो सीक्वेंस पर परफॉर्म करवाया था, एक सीक्वेंस पर परफॉर्म करवाया था, मैंने सीक्वेंस तो था वो, लेकिन वो मैंने करवाया था आपसे। एक तो फेबरिक सीरीज थी, उसके अलावा मैंने एक और मेजर करवाया था आपसे कि भाई आपने ये वाला सीक्वेंस बना के देना है। तो बेसिकली तकरीबन सेम था, लेकिन वो डिफरेंस क्या कर रहा था कि भाई मल्टीप्लाई बाय 2 और की सारी वैल्यू फ्रॉम 0 to 10 सबको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो वो आपका एक सीक्वेंस बन रहा है। दिस इज द ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस। ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस तब काम करता है जब आपका डेटा किसी चेंज के ऊपर रिलाई करता है, किसी रेट ऑफ चेंज के ऊपर काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में आप फिबोनाची सीरीज की बात करें तो उसका काम क्या था, कैसे काम करती थी? लास्ट टू एलिमेंट्स को आपस में प्लस करोगे तो थर्ड एलिमेंट बनेगा, ऐसी तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस। हाउ यू कैन फाइंड आउट, और उसमें क्या फायदा होता है आपको? such as the value of an investment over the period of time. We need another measure. This will become apparent from the following illustration. Here you can see that, for example, suppose you make a 2-year investment. आपने 2 साल की इन्वेस्टमेंट करी, कितनी? $1,000, and it grows by 100% to $2,000 during the first year. During the second year, however, the investment suffers a 50% loss from $2,000 back to $1,000. अब मुझे एक बात बताएं, हमने बात की कि इसने इन्वेस्टमेंट टोटल कितनी की थी? $1,000 की, राइट? एक साल बाद इसने कितने परसेंटेज पे फायदा उठाया, प्रॉफिट उठाया? 100%। कितने हो गए? 2000। अब इन्वेस्टमेंट कितनी थी? $1,000 की, उसका 50% कितना हुआ? 500। 2000 माइनस 500 कितना हुआ? 1500। ये 1000 कैसे हो गया? क्योंकि नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट 2000 हो गई। आप जो इसको 50% लॉस हुआ है वो आपकी नेक्स्ट ईयर की जो उस वक्त जो करंट इन्वेस्टमेंट थी उसके ऊपर हुआ, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपसे सवाल करता हूं, मैंने एक इन्वेस्टमेंट कर दी कितनी? फॉर एग्जाम्पल मैंने $100 की इन्वेस्टमेंट की, $100 की इन्वेस्टमेंट की है मैंने, एक साल बाद मुझे 50% प्रॉफिट हुआ, जो भी बना, ठीक है? नेक्स्ट ईयर मुझे 100% प्रॉफिट हुआ, टोटल मेरे कितने बने? 300। अब जो यहाँ रेट ऑफ चेंज आ रहा है, दिस इज डिटरमिनेटेड बाय द ज्योमेट्रिक
जो डिटरमाइन करेगी कि बेसिकली जो रेट ऑफ चेंज आ रहा है एक साल में और दूसरे साल के बीच में जो चेंज आपके पास आया वो कैसे आइडेंटिफाई करें, एंड दैट इज द सेंटर लोकेशन, राइट, दैट इज योर सेंटर लोकेशन कि जो रेट ऑफ चेंज आ रहा है दोनों के दरमियान वो हमारी सेंटर लोकेशन। अब इसको आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है, यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक कैसे करना है, द रेट्स ऑफ रिटर्न फॉर ईयर 1 एंड ईयर 2 आर 100% and minus 50%. Respectively, the arithmetic mean and the median is computed as simple क्या करोगे आप R1 plus R2 divided by rate of change माफ कर लो। अब उसने क्या किया 100 plus minus 50 plus minus equals to minus, तो बेसिकली क्या होता है 50 divided by 2 equals to 25%। ये हो गया आपका क्या arithmetic mean। But the figure is misleading because there was no change in the value। 1000 रुपए डाले 1000 रुपए वापस आ गए, ये बोला 25% इसका मुनाफा लिया, 25% कहाँ लिया मैंने मुनाफा, जो आपकी अर्थमेटिक मीन थी उसने कहा कि भाई आपने जो चेंज आया है पहले साल में वो आया 100%, दूसरे साल में चेंज आया माइनस 50%। अब आप इसकी अर्थमेटिक मीन निकालोगे 100 माइनस 50 इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 2 25%, मतलब मुझे आज की तारीख में 25% मुनाफा होना चाहिए। अर्थमेटिक मीन तो ये कह रहा है, लेकिन जब मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं मुझे 1000 में कोई चेंज नजर नहीं आ रहा, तो यहां पर आपका अर्थमेटिक मीन वैल्यू ये बोला 25% मुनाफा लिया है पर मेरे पास कोई मुनाफा नहीं आया, right? Now because there was no change in the value of the investment from the beginning to the end of 2-year period, the average compounded rate of return is 0%। ये हमारे पास जो एवरेज कंपाउंड रेट होगा वो क्या होगा 0, क्योंकि मेरे पास कोई फायदा ही नहीं हुआ मुझे। As you will see, this is the value of the geometric mean। How? Here is the geometric mean। How to find the geometric mean? One denotes the rate RI, denotes the rate of returns in decimals of the period I। अब I क्या पीरियड होगा, year 1, year 2, ठीक है। The geometric mean for the returns is defined such as 1 plus R geometric mean। ये G बेसिकली क्या कर रहा है आपको geometric sequence में कर रहा है। ये राइट होगा। Okay, here you can see that now here is the example। मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल की तरफ चले जाता हूं। आपको पता है कि किस तरीके से आपने करना है। फॉर एग्जाम्पल R इज दी रेट व्हिच इज बेसिकली चेंजिंग, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे थे किसकी 100% और माइनस 50% की। अब फॉर एग्जाम्पल वी हैव द पीरियड व्हिच इज 1 and 2, ठीक है। नाउ हाउ यू कैन चेंज इट, फॉर एग्जाम्पल हियर इज द चेंज R1 फर्स्ट रेट में हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी 100%। फॉर एग्जाम्पल हम उसको ले लेते हैं वैल्यू 1, ठीक है। अब वैल्यू 1 का माइनस 50 क्या होगा 1/5, ठीक है। अब फर्स्ट वैल्यू हमने किस तरीके से निकाली 1 प्लस द रेट ऑफ चेंज, फॉर एग्जाम्पल 1 plus 1 equals to 2, and the second phase is 1 plus the second rate। second rate क्या था 0.5, 1 plus 0.5, ठीक है। माइनस हो माइनस बनाना हो माइनस 0.5। अब माइनस 0.5 ये बचा तकरीबन आपके पास 0.5 बच गया, ये आपका हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मतलब 1, ठीक है। 1 का आपने निकाला कैश 5, तो क्या बचेगा 1 ही बचेगा। तो बेसिकली 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आपकी ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से आपके पास जो वैल्यू आ गई कितने परसेंट
क्या हमने प्रॉफिट है 0%। दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है ऊपर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। दिस इज द फॉर्मूला। हाउ डज इट वर्क्स? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आई का मतलब क्या होता है? द पीरियड और द एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, सबसे पहले आपने फर्स्ट एलिमेंट रखना है, फिर सेकंड एलिमेंट रखना है। हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स थे? दो। और यू कैन से द रेट ऑफ चेंज कितने थे? दो। राइट। अब पहला रेट ऑफ चेंज क्या था? 1, which is basically 100%। सेकंड क्या था? -0.5। ऐसे ही था। आपने क्या करना है? सबसे पहले इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर, ठीक है, आपने स्क्वायर किया एन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी हो? टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस कितने थे हमारे पास? एलिमेंट्स 2 थे, तो आपको ये स्क्वायर रूट बन गया। ठीक है, फिर 1 प्लस फर्स्ट वैल्यू व्हिच इज 1 प्लस 1। ठीक है, फिर 1 प्लस सेकंड वैल्यू व्हिच इज -0.5। ठीक है, उसके बाद आप टोटली आप -1 कर दोगे जो भी वैल्यू आएगी। टोटली -1 किया, इन द एंड जो वैल्यू आपके पास आ रही है दैट इज योर ज्योमेट्रिक मीन। अब ये वैल्यू किस तरीके से, ये तो आपको इस तरह समझ आ रहा है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, मुझे उसकी ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। सेम एग्जांपल है, कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, 5 साल के आपको बता दो। पहले साल इसने क्या किया? In first year, the investment was of dollars, where the profit on the investment at the end of the year 1 is 25%. Yeah. For the second year, it is 50%. For the last year, it is, last year is for the third year. %100%. Fourth year is -50%, and in last 25%. Find out the earth. डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन
what you need to do is, question is, in the first year the investment was of $2,500, where the profit of the investment at the end of the year is year 1 is 25%. For the second year it is 50%. For the third year it is 100%. For the fourth year it has a loss of minus 50%, and in the last year it is 25%. You need to find out the arithmetic mean, geometric mean, and the total amount in my bank. Now this is how you can use or you can get geometric mean. ठीक है, मैं आपको एक दोबारा लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले आपको करना क्या है, रिमेंबर वी हैव यूज्ड अ लाइब्रेरी नेम्ड एज मैथ लाइब्रेरी। याद आया कुछ? ठीक है, इसमें से हमने अलग अलग फंक्शंस यूज किए थे, जिसमें से एक फंक्शन था पावर फंक्शन। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या था ज्योमेट्रिक मीन का? ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या था कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, और या फिर आप कह सकते हो द नंबर ऑफ रेट ऑफ चेंज, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, उसका रूट बनाना है। और उसके अंदर आपने क्या लिखा था, 1 प्लस फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस थर्ड एलिमेंट एट द एंड, ऐसे था। अब पहले तो हमें एलिमेंट्स बनाना, इसको मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझाऊं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रेट ऑफ चेंज, इसको हमने लिख दिया ROC। ठीक है, आपको ये ROC वर्ड आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, जब हम नॉर्मली ग्राफ्स बनाते हैं, हमारे पास एक होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्राफ होता है, इसको हम कहते हैं ROC ग्राफ, जो बहुत काम का होता है। किस काम का है वो जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं, हमने लिखा भाई ROC, हमारे पास रेट ऑफ चेंज किस हिसाब से आ रहा है। हमने कहा भाई हमारे पास आ रहा है रेट ऑफ चेंज नंबर 1 पहले 100%, उसके बाद सेकेंड ईयर में माइनस 0.5 विच इज बेसिकली इक्वल्स टू 50%। ठीक है, समझ आ गया कि भाई हमारे पास 2 ईयर का हमारे पास रेट ऑफ चेंज आ गया, एक 100%, दूसरे में माइनस 50%। अब आपको पता है माइनस 50% है ना, लॉस हुआ था ना दूसरे साल में। अरे मैं इसमें नहीं बता रहा बेटा, मैं पुराने एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। जो हमने किया था उसमें क्या था, 1000 की इन्वेस्टमेंट आई, अगले साल उसने 100% प्रॉफिट उठाया, 2000 हो गया। उसके अगले साल 50% का नुकसान उठाया, वापस 1000 हो गया। टोटल हमारे को प्रॉफिट कितना हुआ, 0%। यही था ना। तो पहले ईयर में उसने कितना उठाया भाई, प्रॉफिट में गया 100% प्रॉफिट। सेकेंड ईयर में उसने माइनस 50% का गया। फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर रूट के अंदर का बताओ, रूट के अंदर का बताओ, 1 प्लस R। अच्छा एक बार याद रखें, मतलब जितने भी एलिमेंट है उसमें 1 प्लस करना है, ऐसा ही है। तो क्यों ना पहले इन सारे एलिमेंट्स में 1 प्लस कर दिया जाए, राइट। तो 1 प्लस कैसे करेंगे, वही आप लिखते भाई ROC इक्वल्स टू जो भी हमारा ROC है उसके अंदर प्लस 1 कर दो। अब जितने भी एलिमेंट है सबके अंदर क्या हो गया, प्लस 1 हो गया। चेक करके देख लेते हैं, Where you can see सबके अंदर प्लस 1 हो गया। आपने देखा भाई इसके अंदर भी प्लस 1 हो गया, इसके अंदर भी प्लस 1 हो गया। पर अगेन यू कैन से सर यहाँ कहाँ प्लस 1 हुआ है, प्लस 1 हुआ है तभी तो वो माइनस 0.5 दिख रहा है, तो वो प्लस 0.5 हो गया ना। ठीक है, समझ आई। अब आपके पास प्लस 1 हो गया, अब क्या करना है, सारे प्लस 1 हो गए। अब इन सब का प्रोडक्ट निकालना था ना भाई, सबको मल्टीप्लाई करना था आपस में। तो हमारे पास प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो आपको पता है, फिर से मैं करवा के दिखा देता हूँ। हमारे पास था NP डॉट, और पहले हम लिखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट इक्वल्स टू NP डॉट प्रोडक्ट ऑफ ROC। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गया, प्रोडक्ट क्या आ गया 1। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है भाई, जो भी प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट आने के बाद हमें उसका रूट निकालना है, बट विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और यू कैन से द नंबर ऑफ
सीक्वेंसेस और रेट ऑफ चेंजेस, ठीक है। टोटल रेट ऑफ चेंज कितने थे? 2। हमें क्या पता? हमें नहीं पता। ये तो आप दिख रहा है कि चलो 2 है तो आपको पता है, पर अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो डेटा आ रहा है हमें उसके नहीं पता भाई कितने रेट ऑफ चेंज आ रहे हैं टोटल, तो हम नॉर्मली कैसे निकालेंगे? लेंथ के जरिए। तो लेंथ के जरिए हमें ये तो मिल गया कि भाई किस तरीके से निकालना। तो हमने क्या किया, पावर में लगाना है। लेकिन अब की बात कैसे लगाना है, हमने कहा भाई जो हमारी ज्योमेट्रिक मीन होगी जी, मीन होगी वो किसके बराबर होगी? मैथ लाइब्रेरी में से हमने उठाया पावर फंक्शन, ठीक है। इस पावर फंक्शन में हमने इसको दिया कि किसका पावर लगाना है? भाई प्रोडक्ट को पावर लगाना है। क्या पावर लगाना है? रूट है। रूट है तो मतलब 1 डिवाइड बाय, अब किसका रूट है? लेंथ है, तो हमने लिखा लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गई? मीन कैसे आएगी? एक और फॉर्मूला में क्या था, जब आप रूट निकाल लोगे उसके बाद उसमें से -1 करना है। तो टोटल हमने क्या कर दिया, इसमें -1 कर दिया। तो हमारी जो ज्योमेट्रिक मीन होगी वो क्या आनी चाहिए? लेट्स सी 0.0, ठीक है। अब ये तो हो गया पॉइंट में आंसर आ रहा है। अगर आपको इसको नॉर्मल आंसर चाहिए तो आप क्या करोगे? सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो आपका ये बेसिकली जो भी आंसर होगा वो सिंपली आपको परसेंटेज में नजर आएगा। इज दैट क्लियर? समझ आ गया किस तरीके से निकाला? हमने वही फॉर्मूला खुद से बनाया, डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा स्क्वायर रूट नहीं था। हमने क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। अभी तो 2 है तो इसलिए स्क्वायर रूट ठीक है, लेकिन बाद में 3 हो गए, जैसे कि जो मैंने आपको दिया उसके में कितने 4-5 तो है। तो अब ये मुझे कैसे करना है? ये तो स्क्वायर रूट में नहीं आएगा, तो इसलिए आपने पावर लगाया 1 जो भी लेंथ है। जब आप स्क्वायर रूट की बात करोगे, रूट की, तो उसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाय जो भी आप रूट लगाना चाहते हैं। ऐसे ही होता है। जैसे अगर स्क्वायर रूट है तो पावर क्या होगी? 1/2। अगर क्यूब रूट है तो पावर क्या होगी? 1/3। अगर 5 का 5 का लफ्ज है तो 1/5। तो हमें नहीं पता क्या है, तो हमने डायरेक्ट क्या लगा दिया, इतना भी है, ठीक है। समझ आ गई? अब इस तरीके से आप, ये हो गया सिंपल ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका। एक और तरीका है, वो तरीका क्या है? यूजिंग लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन से भी आप निकाल सकते हैं। लोगरिथम से कैसे निकालते हैं? कि जो भी आपका डेटा है पहले उसके अंदर +1 कर दो, जो भी वैल्यू आई उसकी आपने क्या किया? लोगरिथम निकाला, उसका लॉग निकाल लिया। अब जो लॉग की वैल्यू आएगी उसका आपने क्या किया? मीन निकाला। मीन के बाद उसके ऊपर एक्सपोनेंशियल लगा दिया। दिस इज द फॉर्मूला टू गेट ज्योमेट्रिक मीन। अब ये दोनों तरीके आपके पास है। सिंपलेस्ट तरीका ऊपर वाला है जिसमें आपका पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है वो ठीक बैठता है, ठीक है। ये भी तरीका है निकालने का। और इसमें फिर क्या है, पहले लॉग निकालो, फिर लॉग निकालने के बाद फिर इसकी अरिथमेटिक मीन निकालो, फिर अरिथमेटिक मीन निकालने के बाद उसका एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकालो, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें से -1 करो, फिर आपके पास जी वैल्यू आ जाएगी। सबसे आसान तो वही है जो हमने ऊपर से खुद से बनाया, वही यूज करो, कोई इशू नहीं। अब ज्योमेट्रिक मीन निकालना आ गया, लेकिन अगर आप कोई चाहते हो कि जो भी ज्योमेट्रिक मीन आ गई उसके जरिए से मुझे कैसे मिले कि मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, मतलब इन दी एंड कंपाउंड मेरे पास क्या बचा, उसको निकालने का तरीका भी बहुत आसान है। करना क्या है? सिंपल तरीका है, जो भी आपकी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कंपाउंड निकालना है, सबसे पहले वैल्यू क्या है आपकी, इन्वेस्टमेंट कितनी थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, चलो आप बना लेते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया बस, ठीक है, मुझे 100,000, ठीक है। आपने क्या करना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय ज्योमेट्रिक मीन 1 माइनस ये हटा दो। सिंपल फॉर्मूला क्या है कि कंपाउंड फाइंड आउट करने का, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन यहां पर क्या है? 0। 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 0। कैसे? 1 बचेगा ना,
1 बचा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल्स टू 1000, तो आपको बेसिकली मुनाफा कुछ भी नहीं हुआ और आपकी जो वैल्यू थी जो इनिशियल है आपके पास कंपाउंड वैल्यू इनिशियली पड़ी। सही है। अब इसी तरीके से जो मैंने आपको दिया है वो उसका अमाउंट निकाल के